Hello friends, we'll start again with the semester 1 F5 BCom Maths, your lesson number 1 and page number 1.12 का sum number 8. Already 1 to 7 sums upload हो चुके, so you must be having that videos. Now let us start with the sum number 8. Find the number of plants in each row if 1024 plants are arranged so that the number of plants in a row is the same as number of rows. तो क्वेश्चन क्या है, आपके पास 1024 प्लांट्स है, उसको ऐसे अरेंज करना है दैट द नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो इज द सेम एज नंबर ऑफ रोज. जितनी तुम्हारी रोज उतने तुम्हारे प्लांट. इफ माई रोज आर 12 तो प्लांट भी 12 होगा. इफ माई रोज इज 24 तो मेरे प्लांट्स भी 24 है. तो वो हमें फाइंड करना है, राइट. तो व्हाट इज द इजीएस्ट मेथड? लेट अस फाइंड द factorization method. How many number of plants will be there so as the number of will become equal? Simple method. 2 5s are 10, 512. 2 divided by 5 and 2. If you want, you can do it. 256. Then 2 1s are 2 8s are. Then 2 6s are 64. This 32 16. 2 8s are 2 4s are. Factorization method now everybody knows. Now what we want the answer? The number of plant is equal to the number of rows. Right? Plant and rows both are same. What we want answer? 1024. 2 into 2 into 2 into 2. How many 2 is there? Let us count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 times we have to write. This 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Let us count. 3, 3, 6, 3, 9. Now see what we want. Number of rows is equal to number of columns. Let us do. 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32. I have taken 5 times 2. Again another 5 times that. It means this is 32 into this is 32. Both answer is coming 32. It means my number of plants is equal to number of rows. Both are 32. That's why therefore the number of plants are 32 and the number of rows are 32. Both are the same. Why? Because हमें पूछा बताया गया है कि आपके जितने प्लांट्स हैं उतने ही आपके रोज होंगे. तो व्हेन आई हैव डन फैक्टराइजेशन तो मैं ऐसा कॉम्बिनेशन लूँ जहाँ पर दोनों का आंसर इक्वल आ जाए. तो 32 and 32 both are coming equal, so my answer is 32. Okay. Now next sum. 9th sum I am doing. I am reading the question. Hope so सबके पास टेक्स्ट बुक ओपन रहेगा. Difference of two perfect cubes is 189. If the cube root of the smaller of the two number is 3, find the cube root of the larger number. आपके पास difference दिया है, right? Sum number 9 I am writing now. Difference of two perfect cube. Perfect cube मतलब the number is perfect cube of the other is 189. परफेक्ट क्यूब मतलब 2 क्यूब इज 8. तो 8 इज अ परफेक्ट क्यूब फॉर 2. वैसा उन्होंने दिया है. अभी उसमें क्या दिया उन्होंने? एक कंडीशन दिया है कि स्मॉलर नंबर इज 3, राइट. अभी 3 इज अ स्मॉलर नंबर, तो 3 का क्यूब कर लेते हैं. हाउ मच कम्स? 3 क्यूब इज 27. ओके. नाउ व्हाट दे आर टेलिंग? फाइंड द लार्जर नंबर. परफेक्ट क्यूब के 2 नंबर है. एक नंबर 27 है और दूसरा नंबर वो हमें फाइंड करना है. तो वो नंबर का क्यूब करोगे और फिर ये दोनों को माइनस करो तो आंसर शुड बी 189. तो विच कुड बी द बिगर नंबर, राइट? द बिगर नंबर इज 3 के बाद सपोज मैंने 4 किया, राइट. इफ दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इफ 4 क्यूब आई एम डूइंग, 4 4 16, 16 4 64. अब 64 और 27 को माइनस करो तो 189 नहीं है. एंड ट्राई विथ 5 क्यूब.
5 क्यूब 5 5 से 25 5 से 125 125 में से 27 भी माइनस करो तो भी आपको 189 नहीं आएगा. Let us start with a 6 cube. 6 6 are 36. 36 6 are 216. It means आप 216 में से 227 माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा 89. If larger number is 6 cube, that is 216. Right? Now the difference क्या आना चाहिए? The difference between smaller number and larger number. That is 216 minus 27 करो क्या आ रहा है? If you do it minus, it will come 189. Right? So this I have rechecked. So the which is the large number? The larger number is 6. This is your answer. कि अगर आपने लार्ज आई हैव शोड यू क्योंकि हमने 6 ही लिया, व्हाई आई हैव नॉट टेकन 4 5, तो 6 क्यूब आप किया तो आपको 216 आया. तो 216 को आप 27 से माइनस करते हो आपको डिफरेंस आ रहा है 189. सो योर नंबर इज राइट 6 क्यूब. ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द लास्ट सम 10 सम नंबर. ओके, विल स्टार्ट विद द सम नंबर 10, last sum now of your lesson number 1 exercise. Find the side of the square whose area is equal to the area of rectangle with the side 6.4 meter and 2.5 meter. आपको साइड फाइंड करना है किसकी? स्क्वायर की. और एक हिंट दिया हमें कि एरिया ऑफ स्क्वायर जो आपको मिलेगा वो इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर दोनों सेम है. नाउ लेट अस सी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. दिस इज योर रेक्टेंगल. राइट, रेक्टेंगल के एरिया की फॉर्मूला area of rectangle is equal to length into breadth. राइट, ये आपकी फॉर्मूला होते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अभी रेक्टेंगल की साइड्स कितना दिया है? लेंथ इज गिवन 6.4 मीटर, ब्रेथ इज गिवन 2.5 मीटर. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. 6.4 into 2.5 करो आप. 6.4 into 2.5. 6.4 into 2.5 right it is 16.0 square meter. जब भी एरिया फाइंड करोगे तो स्क्वायर मीटर लिखना है. राइट, फर्स्ट कंडीशन क्या थी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर. दोनों के एरिया सेम है. रेक्टेंगल का कितना है? 16.0 स्क्वायर मीटर. वही हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर है. राइट, नाउ व्हाट दे सेड, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर. नाउ लेट अस सी, दिस इज माय स्क्वायर. यू नो स्क्वायर के ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल. राइट, अभी इसका एरिया हमारे पास कितना है? 16.0. सो एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. ये आपकी फॉर्मूला है. आपका एरिया कितना है? 16 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. एज पर द रूल, अगर आपको स्क्वायर नहीं चाहिए तो दिस बिकम 16 बिकम स्क्वायर रूट. अगर आप 2 निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे तो 16 क्या होता है? स्क्वायर रूट हो जाता है. इज इक्वल टू साइड. तो साइड इज इक्वल टू रूट 16 किसका है? 4 मीटर. तो आपका एरिया जो स्क्वायर है उसकी साइड कितने हो गए? 4 मीटर. राइट, सो हाउ इज द सम. आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे? लेंथ और ब्रेथ. ऑलरेडी रेक्टेंगल का यू हैव गिवन 16 आ गया, 16.0 स्क्वायर मीटर. और सेकेंड कंडीशन क्या दिया है कि जितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उतना ही आपका एरिया स्क्वायर का भी है. तो मतलब स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 16 स्क्वायर मीटर. फॉर्मूला लिख लो. एरिया ऑफ स्क्वायर का इज इक्वल टू साइड स्क्वायर. साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 16. अगर आपको स्क्वायर नहीं चाहिए तो नंबर को क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाता है. व्हेन यू रिमूव द 2 हियर बिकम स्क्वायर रूट. तो रूट 16 किसका है? 4 मीटर. सो आंसर इज साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 meter. Okay, thanks guys. Thank you. We have completed the lesson number 1, all the sums of the exercise.
Hope so. You must be watching the video continuously, and make it subscribe if it is not done. So whenever I'm doing the new video, you will get the notification.